नमस्कार, वेलकम टू कॉमन इंडियन वॉइस। आज दोस्तों हम लोग इंडिया में काफी एंजॉय भी कर रहे हैं, काफी चर्चा भी हो रहा है। जो विषय पे मैं बात करने जा रही हूँ, आप लोग आई थिंक गेस कर लेंगे कि इट्स पंजाब एंड ऑल द थिंग्स दैट इज हैपनिंग। एंड आज मेरे साथ दो पैनलिस्ट हैं। एक पैनलिस्ट हमारे जाने माने रणदीप सिसोदिया जी, द ऑथर ऑफ द क्रूसेडर, how Modi won 2019. He has been many times on our channel and you people have really liked him, appreciated him. मैं देखती हूँ। And आज हमारे जो new panelist है वो बलबीर सिंह जी है। He is from Mumbai. He is an entrepreneur, a very passionate one. And I am 100% sure कि आज आप फिर से एक बहुत ही अच्छी चर्चा सुन पाएंगे। माई हिंदी इज नॉट वेरी गुड, सो आप लोग अभी तक तो यू मस्ट हैव गॉट अकस्टम टू माई हॉरिबल हिंदी। एनीवे, नमस्कार एंड वेलकम बोथ ऑफ यू। नमस्कार ईशा जी, थैंक यू फॉर हैविंग अस। थैंक यू सो मच। सो बलबीर जी, मैं आपसे शुरू करना चाहती हूँ। कल से तो हम लोग देख रहे हैं कि मीन्स देयर इज अ सर्कस गोइंग ऑन एंड द पर्सन हु वाज रिस्पांसिबल फॉर टॉपलिंग a steady government has now resigned. So what exactly do you have to say about that? What is your take on it? See, I will go with the captain's own words that he is an unstable person. So if you look back, Sidhu has never been stable ever. Even in the cricket that he played, he's shown a lot of temperament. So we know his history. And when he was with BJP, he tried to do something. Okay, now he was not successful, whatever, he was not patient enough. Because he has to understand what is his following, which the party has to gain. Because winnability is very important for any party. So अगर आज मैं अमृतसर से हूँ और मैं leadership कर रहा हूँ, तो मेरे साथ कितने हैं, how much can I garner is very important. So maybe he didn't do well enough in BJP. He was not fruit bearing, let me put it very blunt. And the result is he left. Then he was scouting around to go to AAP. Then the rumors from AAP, he then finally landed up in Congress. And then to have given him that position of the party chief has also sent a lot of, ill feelings across the party. I mean, let's face it, that Congress is an age-old party for a very, very long time. We need to respect that party. What is happening today is a separate issue. But as a party goes, that has been the party which has led the country for decades. And for them to digest an outsider coming in there and to be made the party chief of the state is not something which is accepted to the people. That's what I feel, that is where whatever arithmetics they have played with him is not bearing fruit, because it's really brought the family into, again, a very precarious situation. And it's an unhappy thing. We as observers can feel differently, but as far as the family is concerned, for them it's a big loss of face. While that happens, and you have Chhattisgarh happening today, 7 MLAs are running to Delhi, so it's really on the boil. So I think the choice of Sidhu had to be, very, very carefully done. So that's his, character. Right. रणदीप जी, मैं एक चीज जस्ट आने से पहले, हम लोग प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैंने देखा कि मनीष तिवारी जी हैज कम डाउन वेरी हेवीली ऑन दिस एंड ही इज वेरी डिस्प्लीज्ड। मैं नॉर्मली मनीष तिवारी इज अ वेरी strong and loyal Congress person, but he also came out. So something is actually very wrong over there. आप प्लीज इस पे we would love to hear what you have to say about it. ईशा जी, आप देखिए कि कैप्टन साहब कांग्रेस में पिछले he's been there for more than 40 years. Now whatever you may say, now his popularity may have dimmed in the last few months, and which is true for any incumbent government. Anti-incumbency does come in. And and because of what happened during farmer protest, obviously the credibility of not just Congress but a lot of political parties has been lost. And the captain, whatever we may say, captain has been Congress's face in Punjab.
In fact, he was single-handedly won Punjab for Congress in 2017, जो last elections हुए थे. So he has a lot of following. So whatever we may say, but he continues to have a lot of following in Punjab and also amongst Congress, especially old traditional congressmen. He has a lot of following, and there's a lot of resentment in Congress. That is very clear. I mean, you talk. I mean, abhi not just Manish Tiwari, abhi कपिल सिब्बल भी बोले हैं, बहुत सारे एक्स कांग्रेसमैन बोले हैं. तो ये तो, और दूसरा सी अब देखिए ऑन टॉप ऑफ इट, ऑन द अदर साइड मैं कहूंगा एंटीथेसिस जो है वो है नवजोत सिंह सिद्धू. नाउ ही इज अ पर्सन हु जॉइंड कांग्रेस जस्ट 4 years बैक, 4.5 साल हुए हैं, एंड ही हैज ऑलरेडी बिकम अ पीसीसी प्रेसिडेंट. So that is another reason for disgruntlement amongst the congressmen. जो traditional congressmen, जो loyal congressmen हैं, they've had this issue, and as Balbir ji भी बोल रहे थे कि he's basically a misguided missile. He's a loose cannon, and which actually Rahul Gandhi has let loose. But he may just come back and hit Rahul Gandhi. Apparently, he's already done that. So extremely ambitious person for his own selfish interest. It is coming out very clearly now. In fact, अब आप देखिए कि he was in वो थे बीजेपी में 10 साल से ऊपर रहे, 12 साल. Yeah. Why is it that he could never go, any level beyond a member of parliament? I think BJP read him well. They knew that he's somebody who could be like a bull in the china shop, and कोई भी अगर इनको responsible position दी जाए, तो he's capable of making a mess of it, because he's basically an autocratic person. It is coming out very evidently. For him it is like either my way or highway. और उन्होंने क्लियरली बोला भी कि मैं तो अगर मेरी बात नहीं मानेगी तो मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा. तो कांग्रेस को डायरेक्टली चैलेंज करते रहे. और and so eventually you have to put the blame on the leadership of Congress, that ये सब था उनके सामने. क्या उनका करियर, जैसे बलबीर जी ने भी बोला, क्रिकेट में भी he was very unpredictable person. वो कई बार वो फास्ट बॉलर्स की सीरीज आती थी तो वो सीरीज ही मिस कर देते थे. खुद ही अपने आप से बीमार पड़ जाते, मतलब जो हमने सुना है वो भी हुआ है. So all said and done, I think Congress leadership has to finally take the blame for the kind of mess they are in. Absolutely. बलवीर जी, कांग्रेस लीडर जैसे रणदीप जी ने बोला है कि कांग्रेस लीडर शुड टेक द ब्लेम. मेरा एक सवाल है, जैसे आजकल इंटरनेट होने की वजह से, सोशल मीडिया होने की वजह से एवरीथिंग इज इन पब्लिक डोमेन. तो सिद्धू के जो बिहेवियर था before he joined Congress, when he was in BJP, that was also in public domain. And what he told about the family, that is also in public domain. And he has, अभी तो वीडियो वायरल भी हो रहा है, सेम चीजें वो हर किसी के लिए बोलते हैं. उसके बाद इतनी ब्लाइंड होके उनको ट्रस्ट कैसे कर लिया, इतने रिस्पॉन्सिबल प्लेस दे दिया? हाउ कुड दे डू इट? इतना जजमेंटल, मतलब वेरी रॉन्ग जजमेंट. That is where they are going wrong. अगर आप पिछले, जब से 2014 से मोदी जी आए हैं और इस एरा में इन्होंने कुछ अपनी चीज को करेक्ट कर ही नहीं पाए. They are continuously doing one mistake after the other. Yesterday I was listening to somebody that इनके अच्छे लोग छोड़ के चले गए, जो इनको ज्वाइन किया है. तो कल भी 2 सज्जन ज्वाइन किए हैं, अपने को दोनों के नाम मालूम है इन्होंने. तो एज सच इनके जजमेंट में एरर है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है. अगर आज मुझे इस गवर्नमेंट को कन्फ्रंट करना है और मुझे इसकी टिप्पणी करना है, तो मैं उसको सोच समझ के उनके पॉइंट्स बेसिस पे चलूंगा कि ये चीजें गलत हो रही हैं, इसको सुधारिए. लेकिन इनका तो सिर्फ क्या है, पर्सनल अटैक. अब कब तक ये पर्सनल अटैक करते रहेंगे, कब तक इस टाइप के लोगों को लेके आएंगे? आज कांग्रेस में भी G23 खड़े. आज भी किसी ने सवाल उठाया कि हमने भी चिट्ठी लिखी थी, लेकिन अभी तक पार्टी हाईकमांड ने आज तक कोई डिसीजन नहीं लिया है. तो ऐसे बहुत सारी चीजें पेंडिंग हैं
जो वो इसको नजरअंदाज करके, मैं बहुत रिस्पेक्टफुली बट एक बुल हेडेड तरीके से चल रहे हैं कि हमने कह दिया, हमने डिसीजन ले लिया, अब ये पार्टी जैसा भी हो करते जाए। तो इस हिसाब से अगर हम देखा जाए तो बहुत फ्लॉ है इनके सोचने में, इनके समझने में, और आपको कभी समझ में भी नहीं आता है कि ये कर क्या रहे हैं। ये अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार। आपने थोड़ी पहले मनीष जी का नाम लिया। मनीष तिवारी बहुत नपी तुली बात करते हैं, और जब भी उन्होंने कोई भी खड़े होकर बात करी है, he has been very precise, he has been very accurate, he has been very point blank what he says. And for him to be heard, because these are the people who should have been brought to the forefront. You see, Captain Saab is of a certain age. He had already said कि इस टर्म के बाद मैं वापस नहीं आना चाहता हूँ। वो उसका प्लान था, and it was declared, it was told to the public. And today they are the way pushing him, and whatever they have done to him, I mean they had to get the proper cadre up. अब आज जो सिटिंग लोग हैं ऑलरेडी कांग्रेस में दिग्गज हैं, पंजाब से भी हैं, आप उनको नहीं अपग्रेड ऊपर लेके जा रहे हैं कि आप you should take the stewardship. I mean this is something which is really unfortunate that they are doing to themselves, and the sufferer today is the people. आज पंजाब के अंदर जो है उनको तकलीफ है, लोगों को तकलीफ है। रणदीप जी आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, no, actually, just on this question, Isha ji, this is the main difference between BJP and Congress. BJP is वो जो performance based party है BJP, और कांग्रेस का परफॉर्मेंस इशू नहीं, कांग्रेस का है लॉयल्टी टू द फैमिली। अब आप देखिए, मैं एग्जांपल ले लेते हैं। अब सिद्धू हैं, उन्होंने क्या किया है आज तक रिस्पॉन्सिबल, ऐसे कौन सी रिस्पॉन्सिबल पोजीशन हैंडल की है? 4 साल हुए थे कांग्रेस आए को, पीसीसी बन गए, पीसीसी प्रेसिडेंट बन गए। क्यों बन गए? क्योंकि उन्होंने एक इक्वेशन स्ट्राइक कर ली दोनों सिबलिंग्स के साथ, गांधी सिबलिंग्स के साथ। अदरवाइज क्या अचीवमेंट था? उन्होंने कोई इलेक्शन जिताया था कांग्रेस को? नहीं। उन्होंने हाँ बहुत बढ़ चढ़ के नेहरू गांधी परिवार के बारे में बहुत फ्लावरी लैंग्वेज यूज की, जो कि वो आपने जैसे पहले बोला सभी के लिए किए हैं। वो सेम ही श्लोक उन्होंने सभी लीडर्स के लिए, चाहे वो बस ये किया। और उन्होंने इक्वेशन बनाई जाके, और फिर देखिए दूसरा, कैप्टन की कैबिनेट में वो गए, ठीक है, उनको एक पोजीशन मिली। कैप्टन ने जैसे बताया 7 महीने तक एक फाइल नहीं क्लियर करी, बिकॉज ऑफ नॉन परफॉर्मेंस इश्यूज उनको कैबिनेट से निकाल दिया गया। तो एक काम मिला उनको ढंग का, वो भी नहीं कर पाए, और वो अब सीधा चीफ मिनिस्टर बनने की ताक में है। क्यों? क्योंकि वो ही इज द राइट हैंड मैन ऑफ राहुल गांधी एंड प्रियंका गांधी। अब आप वही एग्जांपल लीजिए बीजेपी में ज्योतिरादित्य सिंधिया आए, क्या हुआ? आए वो कितनी देर, उनको कोई पोर्टफोलियो नहीं मिला। फिर जब एमपी के इलेक्शंस हुए, उन्होंने 28 में से जब 18-19 सीटें जीत के दिखाई, उसके भी बहुत बाद जाके फिर उनको कैबिनेट पोजीशन मिली है, जबकि वो पहले कांग्रेस की सरकारों में बहुत पोजीशन ऑलरेडी हैंडल कर चुके, वो अपने आप को प्रूव भी कर चुके थे पहले भी। कांग्रेस के टाइम में भी उन्होंने वेरी इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज ही हैंडल्ड। बट बीजेपी में, जब तक वो बीजेपी में आके उन्होंने अपने आप को प्रूव करके नहीं दिखाया, इररिस्पेक्टिव ऑफ उनकी जो भी इक्वेशन हो, चाहे वो मोदी के साथ हो, चाहे वो अमित शाह के साथ हो, अप अंटिल ही showed the results on the ground, he did not get any responsible position. अब ये फर्क, ये मूलभूत कारण है दोनों पार्टीज में कि बीजेपी में इट इज अबाउट परफॉर्मेंस और कांग्रेस में इट इज अबाउट पर्सनल इक्वेशन विद द फैमिली। इसमें जो रणदीप जी ने कहा है कि आपने अभी चीफ मिनिस्टर चन्नी जी बने और पहले दिन से पिक्चर वो उसका हाथ पकड़ के घूमता फिर रहे हैं, आपने सबने हमने देखा है, विच इज ऑल्सो कम्युनिकेटिंग सच पुअरली कि वो चीफ मिनिस्टर है, आप लेके ही वांटेड कि भाई मेरा ये मोहरा है, जैसा मैं चाहूंगा मैं करूंगा। अब रणदीप जी ने कहा कितने महीने उसने कोई काम ही नहीं किया, उनको काम करना ही नहीं है। अब ये 3 टाइम का एमपी है जो चन्नी बने हैं, उनको एक एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस भी है, वो जो भी रहा हो अच्छा कर रहे हैं, करेंगे, लेकिन आज उसका हाथ पकड़ के घूम रहे हैं, दैट इटसेल्फ शोज। और तीसरे दिन नाराज हो गए कि ये 3 ऑफिसर्स को आपने मेरी पसंद के नहीं रखा है। दिस इज नॉट हाउ द गवर्नमेंट वर्क्स।
any government for that matter. Exactly. एक ट्रिकी क्वेश्चन पूछ रही हूँ, जैसे अमरिंदर सिंह कैप्टन जो है, हम लोगों ने मतलब मैं बहुत रिस्पेक्ट करती थी, बट जब से फार्मर्स एजुकेशन हुआ, ही हैज समवेयर, मुझे एटलीस्ट मुझे पर्सनली लगता है कि ही हैज बर्न्ड हिज फिंगर्स। मतलब उन्होंने खुद ही, मैंने इनफैक्ट मैंने ट्वीट किया था कि कैप्टन आपको नहीं लग रहा है यू आर बर्निंग and it is going to come back, actually it is going to come back boomerang on you. So आप लोगों का take क्या है? Am I right or am I just jumping the gun? No, you're saying right. रणदीप जी आप पहले। नहीं आप बोलिए बलबीर जी। So basically ये जितना भी प्रोटेस्ट है, आप और हम पूरी दुनिया जानते हैं कि there's nothing to do with the farmers. The real farmers are working. ये जितने लोग हैं they are not the farmers. ये फार्मिंग में आज आप देखिए सारी मंडियों में अपना अनाज आ रहा है, बिक रहा है, क्रॉप्स लगी जा रही हैं। किसी फार्मर के पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो घर छोड़ के, अपनी खेती छोड़ के ये काम करे। हम भी किसी ना किसी तरीके से फार्मिंग से जुड़े हैं। मेरा भी अमृतसर के पास गांव है, हमें मालूम है कि फार्मर कैसे काम करता है। ये सारा प्रोटेस्ट के पीछे कुछ लोग हैं और उसकी कंपल्शंस हैं जो ये पार्टीज हैं जो अपोज कर रही हैं। मेरा ऐसा सोचना है कि जैसे 2019 में एनडीए फिर से जीती, इन्होंने ये ठान ली कि हमने इनको कोई काम ठीक करने नहीं देना है, एक के बाद एक प्रोटेस्ट करना है, ताकि इनकी जो इमेज है, वो छवि है, वो पूरी दुनिया में खराब हो और हिंदुस्तान में खराब हो। ये उसी को एफर्ट के चक्कर में ये सब काम कर रहे हैं। कैप्टन दिल से बिल्कुल नहीं चाहते होंगे, लेकिन वो मजबूरी से काम कर रहे हैं। इसके पीछे आप भी हैं, कांग्रेस भी है, ये सब लोग पार्टियां, ये जो ऑपोजिशन बनी हुई है, दे आर ऑल पार्ट ऑफ दिस होल गैम्बिट। अब किसी के ऊपर नफ्स पे हाथ तो नहीं रख के बता सकते कि ये प्रूफ है हमारे। बात यही है कि सब उनका समर्थन जब वो कुछ करते हैं तो कर देते हैं, उसके बाद चुप बैठ जाते हैं। आज कितना नुकसान हो रहा है इकोनॉमी को, पंजाब की इकोनॉमी को कितना नुकसान हो रहा है, उनकी रेवेन्यू को नुकसान हो रहा है। Nobody is bothered because सब रोड ब्लॉक किए हुए हैं। मेरे तो फैमिली मेंबर्स दिल्ली में रहते हैं, सब गुड़गांव जाते हैं पंजाब, उनका कोई ना कोई काम है कहीं है। इट इज सच एन इनकन्वीनियंस कि हाईवे छोड़ के आपको छोटी छोटी सड़कों में से निकल के आना है। ट्रेवल टाइम को खराब कर दिया है इन्होंने, हर चीज। और जिनकी दुकानें जहां ये प्रोटेस्ट लगा के बैठे हैं, उनका बिजनेस तबाह हो गया। आप गाजियाबाद में ही देख लीजिए, मैं तो गाजियाबाद खुद गया, अभी नोएडा जाना था मुझे, तो आई वाज शॉक्ड टू सी कि वो पूरा एक तरफ का हाईवे जो है, एक्सप्रेसवे, उन्होंने ब्लॉक ही करके रखा है। तो कितने लोगों का नुकसान हो रहा है। सो डेफिनेटली दे आर ऑल पार्ट ऑफ दिस व्हाटएवर इज हैपनिंग। ये कैप्टन अकेले ही नहीं है, ये दूसरे कैप्टन्स भी हैं। ये एक्चुअली आई कंप्लीटली एक पार्ट ऐड कर देती हूँ। जैसे अभी थोड़े दिन पहले कैप्टन ने ये भी मतलब ऑन रिकॉर्ड वो अपील किए कि आप लोग हैं पंजाब में, बिकॉज फिर से फार्मर्स ने रेल रोको किया था, तो एट दैट टाइम उन्होंने अपील किया कि आप लोग दिल्ली में जाके बैठो। ये भी मुझे ऐड करना था। नहीं, ये मैं आपको बताता हूँ ईशा जी, बलबीर जी ने बिल्कुल सही बोला है। आई थिंक कैप्टन ने बहुत बड़ी मिसकैलकुलेशन कर दी ये फार्मर प्रोटेस्ट में। आई थिंक ही वाज, मेरा जो अपना मानना है कि ही वाज प्रेशराइज्ड बाय राहुल गांधी टू सपोर्ट दिस, बट कैप्टन ऑल्सो डिड नॉट नो, आई बिलीव सो, मुझे जो लग रहा है कि उनको भी पता नहीं था कि यहाँ पे सेपरेटेड एलिमेंट्स आ जाएंगे। He probably did not know that this is an international conspiracy, जैसे बलबीर जी बोल रहे थे कि it's a basically an anti-Modi protest to bring down Modi by whatever way possible, चाहे उसके लिए हमें एक इंटरनेशनल जो टूलकिट गैंग को भी हमें साथ में लेना पड़े, और चाहे उसके लिए इंडिया की इमेज धूमिल हो जाए, खराब हो जाए, बट हमको ये करना है। अब ये कैप्टन को मुझे नहीं लगता उस समय समझ थी। एंड लेटर ऑन आई थिंक, जैसे बलबीर जी ने बोला, इतना जब नुकसान होना शुरू हो गया फार्मर्स का भी, अभी बलबीर जी ने बताया गाजियाबाद और सिंगू बॉर्डर इधर उधर, ईशा जी मैं बता रहा हूँ पंजाब में बहुत नुकसान हुआ है बिजनेसेस को। जैसे कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स विद इन फार्मर्स में, आपको पता है जियो के टावर्स तोड़ दिए थे, वो तो जियो था इसलिए न्यूज में आया। इतने बिजनेसेस का उन्होंने नुकसान में किया, वो न्यूज में नहीं आया। आपके पेट्रोल पंप नहीं चलने दिए, बिजनेस नहीं चलने दिए, दुकानें बंद हो गई है पंजाब में।
मैं बता रहा हूँ इस बार जो बिजनेस कम्युनिटी थी, मुझे नहीं लगता कांग्रेस को कोई, और जिसने भी फार्मर प्रोटेस्ट को ने साथ दिया है, बहुत बड़ी संख्या है अर्बन पॉपुलेशन और वर्किंग पॉपुलेशन की पंजाब में, जो इन सबको कोई वोट नहीं मिलेगा, मैं जो मेरा मानना है। और कैप्टन, आई थिंक ही रियलाइज्ड हिज मिस्टेक, तभी उन्होंने बाद में, इफ यू रिमेम्बर 26 जनवरी को जो हुआ, कैप्टन वाज द ओनली पर्सन कांग्रेस में जो उसने बोला कि ये गलत हुआ जो 26 जनवरी को हुआ। और आफ्टर दैट आई थिंक ही देन स्टार्टेड रियलाइजिंग दैट ये एक फ्रैंकेनस्टीन मॉन्स्टर क्रिएट हो गया है, which is not in the interest of Punjab as well as India, because Punjab is a border state. It's a very sensitive state. And Captain, all said and done, by heart, he is a nationalist. तो उनको रियलाइज हो गया, और तभी वो एंड अभी यही नहीं कि दिल्ली यहाँ पे यही उन्होंने स्टेटमेंट नहीं दिया है कि दिल्ली में जाके करो, यहाँ मत करो, बट उन्होंने ये भी बोला, एक स्टेटमेंट और दिया था कि ये अब खत्म करना चाहिए फार्मर्स को। इनफैक्ट उस वजह से भी कांग्रेस वाले बहुत नाराज हुए उनसे। तो आई थिंक ही हैज रियलाइज्ड हिज मिस्टेक। और ये जो आज अमित शाह से मीटिंग हो रही है, उसके बारे में बहुत अटकलें लगाई जा रही हैं। मुझे लगता है ये एक चांस है कैप्टन को टू रिडीम हिमसेल्फ, इफ ही कैन ब्रोकर पीस between farmers and the government, central government. I think his attempt is for doing that. He wants to redeem himself. He wants to correct the situation, the complication for which he is responsible for having created in the first place. Because at the end, all said and done, buck stops with him, because वो chief minister थे. तो मुझे जो लग रहा है कि ये अब अपॉर्चुनिटी है। अब ये भी है कि मेरा जो मानना है कि बीजेपी तीनों लॉ रिपील तो नहीं करेगी, तो वो तो श्योर है। बीजेपी मे गिव सम कंसेशंस, बट अगेन नॉट रियली रिपीलिंग। आई थिंक विद रिगार्ड्स टू एमएसपी कुछ श्योरिटी हो सकता है, बट अगर वो हो जाए तो आई थिंक बीजेपी और कैप्टन का कोई पार्टनरशिप या कुछ अलायंस हो सकता है, बट अभी इट्स टू अर्ली, इट इज बिट फार फेच्ड एट दिस स्टेज। बलबीर जी, मुझे आपसे एक चीज पूछना है। जैसे बीजेपी तो एज फार एज पंजाब इज कंसर्न, बीजेपी का कोई स्टैंड ही नहीं है ना। अच्छा, मतलब they don't have any grassroots workers authority, and they don't have anything. So election में कुछ हारे या जीते, बीजेपी is at, you can say, status को maintain हो जाएगा। मगर मुझे सच्ची में लगता है कि कैप्टन आप मतलब थोड़ा सा उनको समझ में आना चाहिए था पहले। ही इज अ वेरी श्रूड पॉलिटिशियन, एंड ये उनको नहीं समझ में आया कि पंजाब इतना सेंसिटिव स्टेट होने के जगह पे ही शुड हैव थॉट अ लिटिल बिट मोर। दैट्स थिंग। मैं ये पूछना चाहती हूँ, अभी आपको क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी इज इट गोइंग टू गेन because of the foolishness that Sidhu has done? जैसे अभी rumor mongering शुरू हो गया, तो some news channels have started with that also कि he is going to join Aam Aadmi Party, but yeah, we cannot be sure about anything. Irrespective of कौन आम आदमी को ज्वाइन करे, उन्होंने अपने ग्राउंड लेवल पे काफी काम किया। पिछली बार उनकी 23 सीटें थी। They will definitely try to push themselves forward. वो उसमें कोई डाउट ही नहीं है कि ये होगा। ऑन द ग्राउंड क्या हो रहा है आज, अकाली दल का भी जो अभी प्रोटेस्ट है वो भी उसी के हिस्सा है, कांग्रेस भी हिस्सा बनी, आम आदमी भी बनी। लेकिन लोग, कभी होता है ना कि मैं ट्राई आउट करता हूं दूसरे को, ये वाली सिचुएशन खड़ी हो गई है। जब ये ट्राई आउट करेंगे तो गेन होगा जरूर आपको। That is on the ground जो सिचुएशन है, क्योंकि ये फाइट जो है इस वक्त, एक तरफ कांग्रेस खड़ा होगा, एक तरफ आप खड़ी होगी, और एक तरफ अकाली है, और बहन माया जी ने तो उनको ज्वाइन कर लिया है, मायावती ने, तो वो एक लेके चलेंगे ना। क्योंकि हम सबको पता है कि वहाँ कास्ट बेस्ड डिवाइड भी है, जैसे बाकी स्टेट्स में भी है, और यहाँ जो कास्ट बेस्ड डिवाइड है और उसके नंबर्स ऐसे हैं कि डेफिनेटली दे वुड लाइक टू गन फॉर इट। तो वो गन करेंगे, मायावती अपना काम करेंगी, अकाली दल हैज टू टेक सम फेस टू द वोटर्स, कांग्रेस भी करेगी। तो ये 3 कॉर्नर्ड फाइट रहेगी। मुझे नहीं लगता कि एकदम बहुत कोई आसानी से किसी को क्लियर मेजॉरिटी मिलेगी।
एंड एज यू सेड, अनफॉर्चुनेटली फॉर बीजेपी, इन्होंने कभी भी अपनी वहां पे ग्राउंड लेवल पे काम ही नहीं किया. दे हैव कार्डर देयर, लेकिन इनका कभी कार्डर पे इन्होंने ये सोचा ही नहीं, क्योंकि शुरू से दे हैव बीन फोकसिंग कि भाई हम अकाली दल के साथ ही चल रहे हैं. आज ये जो ब्रेक हुआ है, देयर इज टू लेस टाइम फॉर देम टू गेन, क्योंकि 3 सीट से कहां जाएंगे. दैट इज ए वेरी वेरी वाइटल थिंग, क्योंकि 59 पे आपकी सरकार बन जाएगी, क्योंकि 117 सीटें हैं, तो जिसको 59 सीट मिल गई तो वो सरकार तो बना ही लेगी मेजोरिटी करके. तो अब बैलेंस किस तरफ टिप करेगा, दैट इज गोइंग टू बी वेरी वाइटल. सो दैट इज हाउ इट विल प्ले आउट. सो मुझे नहीं लगता है कि एक कैप्टन को वहां ज्वाइन करने को या आम आदमी को ये नवजोत सिंह कर ले, उससे कोई ऐसा बड़ा लाभ आने वाला. किसी पॉकेट्स में हो जाएगा, लेकिन जैसे रणदीप जी ने कहा, इस बार लोग सोच के ही डालेंगे वोट, क्योंकि दे हैव बीन रियली हर्ट ऑन द ग्राउंड. जो आज आम लोग हैं, जो पॉपुलेशन है पंजाब की, वो बहुत परेशान है. लेकिन एट द सेम टाइम, क्योंकि सिखों की जहां बात आ जाती है, जो वो एंगल लोग बीच में घुस के आ गए, और जो भी 26 जनवरी को हुआ, उस एंगल से भी देखेंगे तो लोगों के कुछ मन जो है बदले से हुए हैं. ऑन ग्राउंड लोग कुछ और बोलते हैं, हम ट्विटर पे भी देखते हैं, आम सोशल मीडिया पे भी देखते हैं, क्योंकि किसी ने लॉज तीनों पढ़े ही नहीं है. बस अपने जो मन में आ रहा, उसने एक भेड़ चाल है कि मैंने कुछ बोल दिया तो सब वो कम्युनिटी उनके साथ सब खड़ी हो रही है. तो ये डेंजरस सिचुएशन है, लेकिन किधर टिप करेगा, आई थिंक देयर इज स्टिल टाइम. क्योंकि अभी जब तक ये पूरी कैंपेनिंग होके नहीं जाती, और ये जब तक सेटल नहीं होता है कि कांग्रेस का क्या होगा, इवेंचुअली व्हाट इज देयर सिचुएशन गोइंग टू बी, और बीजेपी हैज अ लॉन्ग वे टू गो. इट हैज अ लॉन्ग वे टू गो. Because लास्ट क्वेश्चन आपके लिए है, वो ये है कि मींस ये जो सर्कस हुआ, इससे कांग्रेस का प्रोस्पेक्ट्स कितना हार्म हुआ? नहीं, आप देखिए ईशा जी के कांग्रेस का प्रोस्पेक्ट्स तो ऐसा है कि बिफोर ये सब हुआ, सर्कस, कॉमेडी सर्कस, उससे पहले प्रोस्पेक्ट्स थे, उनके अच्छे प्रोस्पेक्ट्स थे. लेकिन आफ्टर ऑल दिस हैज हैपेंड, दिस इज रियली ओपनड अप द फील्ड. अब ये फील्ड इतना बहुत ओपन हो चुका है. इनफैक्ट आपने कहा कि कैप्टन इधर जा सकते हैं, उधर. मुझे नहीं लगता वो आप नहीं जा सकते हैं. मुझे कांग्रेस में ऑब्वियसली वो अब आप रहेंगे नहीं, क्योंकि तो उन्होंने बोला कि मुझे ह्यूमिलेट किया गया. सिमिलरली सिद्धू का जो एम्बिशन है, इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनल एम्बिशन सीएम बनने का, वो अब कहीं भी वो, चाहे वो आप में जाए, चाहे वो कांग्रेस में रहे, अब वो फुलफिल नहीं होने वाला है. क्योंकि कांग्रेस में शुरू हो गई है दलित पॉलिटिक्स, सॉरी पंजाब में अब दलित पॉलिटिक्स शुरू हो गई है. जब से आपने देखा कि मायावती ने शी जॉइंड हैंड्स विद सुखबीर बादल, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि अब तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर एक दलित होगा. अब उस भेड़ चाल में हर पार्टी पड़ गई. आप वाले भी कह रहे हैं हम तो चीफ मिनिस्टर बनाएंगे, बीजेपी भी बोल रहा है, और कांग्रेस ने तो बना ही दिया. अब सिद्धू को प्रॉब्लम क्या यही हुआ कि पहले सिद्धू खुद चीफ मिनिस्टर बनना चाह रहे थे. अब इशू ये हो गया कि आर्म्स एम्प्टी नहीं बनी विद इन कांग्रेस, रंधावा का भी नाम आ गया बहुत ऊपर. तो अब उस चक्कर में अब क्या हुआ, क्योंकि दलित पॉलिटिक्स पंजाब में चल रही थी, तो कांग्रेस ने ये मौका देखा, एक दलित चीफ मिनिस्टर बना दिया. अच्छा, सिद्धू को उन्होंने प्लेकेट करने की कोशिश की. हरीश रावत जी ने स्टेटमेंट दे दिया कि जब इलेक्शन होंगे तो सिद्धू लीड करेंगे, वो सीएम बनेंगे. लेकिन उसका पुशबैक हो गया, रिएक्शन हो गया कि फिर सबने बोला कि मतलब तुमने तो ये चेयर वार्मर बना दिया है, दलित का तो ये डिसरिस्पेक्ट कर दिया आपने. तो अब उस चक्कर में फिर उनको स्टेटमेंट देना पड़ा कि नहीं, दोनों लीड करेंगे. अब सिद्धू को फिर समझ आ गया कि अगर चन्नी लीड करेंगे और अगर बाई चांस जीत गई कांग्रेस, तो चन्नी को चीफ मिनिस्टर से नहीं हटा सकते. तो वो अगर वो जॉइंट भी अगर लीडर रहे, पर उन्होंने जीत लिया पंजाब, तो बीइंग एन एक्टिंग सीएम वो ही सीएम बनेंगे. सो वो भी क्लियर हो गया सिद्धू को, क्या वो सीएम नहीं बन सकते वहां पे. तो अब हो सकता है वो अपनी पार्टी फ्लोट करें. तो अब ये है कि इट्स अ ओपन गेम, इट इज गोइंग टुवर्ड्स अ हंग पार्लियामेंट, हंग असेंबली. और इसमें
बलबीर जी ने बिल्कुल सही बोला है कि बीजेपी का ये सबसे बड़ा मिस्टेक है कि उन्होंने सीरियसली ना वहां पे अपना बेस नहीं बनाया है. दे वर ऑलवेज नंबर 2, काइंड ऑफ sidekick, if I may say, although that's not a good term, but they were always a number 2 to Akali Dal. And in fact they were a junior partner. They themselves also admitted कि हम junior partner हैं. पर इसमें अब ये एक मौका, एक अपॉर्चुनिटी बीजेपी के लिए ये है कि अगर वो अच्छे क्रेडिबल फेसेस, अगर एक्सपीरियंस, क्रेडिबल, ऑनेस्ट, सिंसियर फेसेस ले आए, नए फेस इलेक्शन में टिकट दें, खड़ा करें, तो मेरे हिसाब से अर्बन पॉपुलेशन बहुत जो दे वर फेड अप ऑफ दीज प्रोटेस्ट, बहुत सपोर्ट मिल जाएगी अगर बीजेपी अच्छे कैंडिडेट खड़े कर सकती है. मैं ये नहीं कह रहा कि सरकार बना लेंगे, बट वो अच्छी सीट ला सकते हैं और किसी के साथ अलायंस में हो सकता है उनकी सरकार भी बन जाए. अकेले तो ऑब्वियसली कभी भी नहीं बन सकती है, क्योंकि एज बलबीर जी भी बोल रहे थे, 2-3 सीटों से एकदम 50-60 पे, खास करके पंजाब में नहीं आ सकते हैं. वो मुझे पता है, वो बंगाल में उन्होंने बहुत सीटें जीत ली थी. एक और स्टेट, वो मैं भूल रहा हूँ, मणिपुर नहीं है, त्रिपुरा में 0 से वो सरकार बना ली थी, बट वो हर रोज नहीं होता है वो. और पंजाब में तो बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा. पंजाब इज डिफिकल्ट एक्चुअली. मैं एक चीज बोलना चाहती हूँ कि मुझे ना बहुत अच्छा लगा, जैसे टीवी पे जो सर्कस होता है, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि वो सर्कस यहाँ पे ना रहे, शांति से डिस्कशन हो सके, अपने अपने पॉइंट्स रख सके. मेरा होल आइडिया ही था कि कॉमन पीपल शुड कम एंड वॉइस देयर whatever concerns they have, they should have a platform. And honestly, I'm just enjoying myself. जैसे मेरे पैनलिस्ट आते हैं ना, I'm so proud of you people कि आप लोग मतलब इतने बैलेंस तरीके से सब कुछ बताते हैं. I'm sure the viewers are also enjoying themselves. And मैं आप लोगों से यही कह के अलविदा लूंगी कि again I will come back with you and और एक टॉपिक लेके आएंगे. And it's so nice talking to you people, and I think I'm blessed. I'm actually blessed. And viewers, अगर आपको अच्छा लगा, आपको पता है क्या करना है, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड हम लोगों को प्रोत्साहन दीजिए. हम लोग ऐसे ही आते रहेंगे. एंड आप लोगों की अगर क्वेरीज है, मैं हर बार बोलती हूँ, अगर आप लोगों की क्वेरीज है तो प्लीज कमेंट्स में लिख दीजिए, ताकि नेक्स्ट प्रोग्राम जब भी आते हैं तो वी कैन एड्रेस एंड वी कैन आस्क. हमारे जो भी पैनलिस्ट रहेंगे उनको हम सवाल आपके फॉरवर्ड कर सके. सो थैंक यू वेरी मच. थैंक यू रणदीप जी. थैंक यू ईशा जी. थैंक यू बलबीर जी. Thank you, sir. Thank you. गुड नाइट.